کہ غامدی صاحب جو ہیں ہمارے محترم جاوید احمد غامدی صاحب جو ہے ان کی کچھ ویڈیوز ہیں وہ سرکولیٹ کرتی ہیں، کچھ ویڈیوز ان کی پرانی ہیں، تقریباً 2000s میں سے ہیں. ایسا نہیں کہ وہ ویڈیوز ہماری آنکھوں سے اوجھل تھی، لیکن ہم درگزر کرتے تھے، اگنور کرتے تھے. پھر ایسا ہونا شروع ہوا کہ وہ ویڈیوز جو ہیں کیونکہ بالکل ہی لا علمی پر مبنی ہے اور ایوولوشن کی سے بالکل مطلق جسے کہتے ہیں بے خبری اور لا علمی کا ایک بہت بڑا ایویڈنس آپ دیکھنے جا رہے ہیں، اور جو مومو آپ کو دکھائیں گی. پھر کچھ ان کے جو ریسنٹ ورژنز ہیں، کچھ حالیہ ویڈیوز جو ہیں ان میں انہی باتوں کی بازگشت ویسی ہی باتیں ایکو کر رہی تھی. تو ایسا نہیں کہ غامدی صاحب نے ایویڈنس کی روشنی میں پچھلے 20-25 سالوں میں اپنے نقطۂ نظر کو بھی ارتقاء کے مرحلے سے گزارا ہو. ایسا نہیں کہ ان کا نقطہ نظر کسی بتدریج مراحل سے گزرا ہو، جو کہ وہ مراحل کا ذکر کرتے ہیں. ان کے نقطہ نظر جو ہے وہ فاسلائزڈ ہے اور اوسیفائڈ ہے. ان کے نقطہ نظر میں سے کچھ جو فاسلز برآمد ہوئے ہیں وہ اس چیز کا اندیا دے رہے ہیں کہ ان کو ایوولوشن کی سمجھ بوجھ اور فہم نہیں ہے. ایسی کوئی عجیب بات نہیں ہے. دیکھیے ہر فیلڈ میں انسان کے پاس لمیٹڈ اماؤنٹ آف ٹائم اور لمیٹڈ ریسورسز ہوتے ہیں، محدود وسائل ہوتے ہیں. اب ہر فیلڈ میں انسان بیئر منیمم نالج بھی نہیں حاصل کر پاتا. یہ بالکل ایکسیپٹیبل بات ہے. آپ کا جو شعبہ ہے، آپ نے ساری زندگی اس کو دی، اس پر وقت صرف کیا، وہ ایک علیحدہ بات ہے. ہماری استدعا یہ ہے، ویڈیو دکھانے کے بعد یہ بات واضح ہو جائے گی، ہماری استدعا یہ ہے کہ آپ کا اتنا بڑا ادارہ ہے، غامدی لرننگ سینٹر ہے، مورد ہے، المورد ہے، اس میں ہم واقف ہیں اس بات کی کہ آپ کے ساتھ آپ کی پوری ٹیم ہے، اس میں کوئی بایولوجسٹ بھی ہوگا اور شاید ہیں بھی. تو اس کو ساتھ بٹھائیں اور وہ اگر اگری کرتے ہیں، اور آپ کو مل جائیں گے ایسے بایولوجسٹ جو کہ کریشنسٹ ہوں گے، جو آن پیپر بایولوجسٹ ہوں گے مگر کریشنسٹ باتیں کریں گے، لیکن وہ پھر بلیٹڈ پوائنٹ بائی پوائنٹ بتائیں گے کہ ان کے اعتراضات کیا ہیں ایوولوشن پہ. کوئی مقابلہ کرنا یا کسی مناظرہ کرنا کا بالکل ہم یقین ہی نہیں رکھتے اس بات پر. آپ کسی بایولوجسٹ کو اپنے جو آپ کے المورد اور غامدی لرننگ سینٹر کے ہیں ان کے ساتھ بیٹھ کے پوری مشاورت سے ایک ویڈیو بنائیں یا سیریز بنائیں آپ، جس میں آپ ایوولوشن پہ جو آپ کے اعتراضات ہیں ان کو سامنے رکھیں. ابھی آپ بہت جیسے ویڈیو میں دیکھیں گے، آپ نے کہا کہ جیسے سائنس نے ایوولوشن کو غلط ثابت کر دیا. اگر تو آپ ایک لطیفہ گوئی کی محفل سجا کر بیٹھے ہیں، اس کا اعلان کر دیں تاکہ پھر ہم آپ کو داد بھی دیں، کیونکہ فی الحال تو ایسا لگ رہا ہے کہ آپ ایک لطیفہ گوئی کی محفل سجا کے بیٹھے ہیں اور اس کا ایوولوشن کی ایوولوشنری بایولوجی کے علم سے اور سائنٹیفک فائنڈنگ سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہے. مگر یہ کہ اگر آپ کی ظاہری بات ہے آپ کے لرننگ سینٹر میں ہر فیلڈ کے لوگ موجود ہوں گے، آپ کی ریسورسز زیادہ ہیں، ان کے ساتھ بیٹھ کر ایک ویڈیو تیار کریں. ہم واقف تو ہیں کہ کریشنسٹ جو ہیں وہ کس قسم کے اعتراضات پچھلے 20-25 سالوں سے اور اس سے بھی پہلے سے اٹھاتے آئے ہیں، کچھ ریسنٹ بھی اعتراضات اٹھاتے ہیں، اور ان سارے اعتراضات کے تسلی بخش جوابات موجود ہیں ایوولوشنری بایولوجی کے سائنٹیفک لٹریچر میں. ہم بحیثیت طالب علم ان کا مطالعہ بھی کرتے رہے ہیں. غالب اور حاجی بھائی اور مومو کے اس چینل پر ان کو ایڈریس بھی کرتے رہے ہیں، دوبارہ سے ایڈریس کر دیں گے. وہ مناظرہ کا مقصد نہیں. آف لائن آپ علیحدہ سے ایک ویڈیو بنائیں غامدی صاحب، اور اپنے ساتھ کسی بایولوجسٹ کو بٹھا کر اور مشاورت کے ساتھ اب اپنے زیر نگرانی اس کو آپ ویٹ ضرور کریں، ان سے مشورہ کریں، پھر بتائیں کہ آپ کے ایوولوشن کے اوپر اعتراضات کیا ہیں. پھر ہم ان کا آپ کو تسلی بخش جواب دیں گے اپنی حیثیت میں، طالب علمانہ حیثیت میں. ہم بھی آپ کے اوپر کوئی ایسی بات نہیں کہ جی کوئی آپ کو لیکچر دینا چاہتے ہیں، لیکن جو لیکچر آپ نے دیا ہے نا وہ اب مومو دکھائیں گے. یہ دیکھتے ہیں کہ کیا کہہ رہے ہیں غامدی صاحب. بیان کر دیا. دیکھیے قرآن کے الفاظ یہ ہیں، بدا خلق الانسان من تین ثم جعل نسلہ من سلالۃ من ماء مہین. ہم نے انسان کو پہلے مرحلے میں براہ راست گارے اور مٹی سے پیدا کیا، زمین کے پیٹ سے وہ نمودار ہوا،
پھر اس کے بعد ایک لمبے عرصے تک ہم نے اسی صورت میں اس کو درست کرنا شروع کیا. پھر جب وہ بالکل درست ہو گیا تو اب ہم نے دوسرے مرحلے میں اپنی نسل خود پیدا کرنے کی صلاحیت اس کے اندر اس طرح تو آپ ایوولوشن کی تائید نہیں کرتے. پیچھے دوبارہ میں چاہوں گا یہ دوبارہ سنیں، جو لمبے عرصے والی بات ہے نا وہ ذرا لمبے عرصے تک لوگ سنیں. ہاں جی دیکھیے قرآن کے الفاظ یہ ہیں بدا خلق الانسان من طین ثم جعل نسلہ من سلالۃ من ماء مہین. ہم نے انسان کو پہلے مرحلے میں براہ راست گارے اور مٹی سے پیدا کیا، زمین کے پیٹ سے وہ نمودار ہوا. پھر اس کے بعد ایک لمبے عرصے تک ہم نے اسی صورت میں اس کو درست کرنا شروع کیا. پھر جب وہ بالکل درست ہو گیا تو اب ہم نے دوسرے مرحلے میں اپنی نسل خود پیدا کرنے کی صلاحیت اس کے اندر اس طرح تو آپ ایوولوشن کی تائید نہیں کرتے. پاز کر دیں، کوئی ایوولوشن کی تائید نہیں کر رہے. وہ یہ سوال جو تھا وہ مس پلیس تھا. غامدی صاحب کے پوائنٹ پر فوکس کریں. بات یہ ہے کہ ذرا میں نے بار بار اس کو ریپیٹ اس وجہ سے کرایا ہے کہ آڈینس کے دماغ میں کوئی شک نہ رہے کہ غامدی صاحب کیا فرما رہے ہیں. حضرت جاوید غامدی صاحب یہ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک لمبے عرصے تک انسان کو درست کیا، اور جب وہ مکمل طور پہ درست ہو گیا تو پھر اس میں اپنی نسل آگے بڑھانے کی صلاحیت دی. لمبے عرصے تک درست کیا، اس کا مطلب ہے کہ انڈر دس ہائپوتھیسس لمبی ہی بہت ہی زیادہ غلطیاں تھیں جن کو لے کے لمبے عرصے تک درست کرنا پڑا. یہ ہے غامدی صاحب کا پوائنٹ آف ویو. اس بات کو غور سے سن لے، وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ لمبے عرصے تک درست کیا. درست کس کو کیا جاتا ہے؟ جو درست نہ ہو. جو درست نہیں ہوتا اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو غلط کہتے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ اللہ میاں پہلے غلط کام کیا تھا اللہ تعالیٰ نے، اور بہت ہی لمبا ہی غلط کام کیا تھا جس کی وجہ سے ایک لمبا عرصہ لگا ہے. پہلے تو اس پوائنٹ کو غامدی صاحب کہ لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات ذہن نشین ہو جانی چاہیے کہ اور اگلے لمبے عرصے تک ان کے ذہنوں میں یہ چیز رہنی چاہیے کہ غامدی صاحب نے کیا فرمایا. اچھا جی، دوسری مضحکہ خیز بات یہ ہے، وہ یہ کہہ رہی ہے کہ انسان جو ہے وہ پہلے اس کے پاس اس دوران جب انسان درست ہو رہا تھا وہ انسان ہی، یعنی اس کا قالب، اس کا ٹیمپلیٹ انسان کا تھا، اور وہ درست ہونے کی منازل سے مراحل سے گزر رہا تھا. بقول غامدی صاحب کی اس دوران انسان پیدا ہوا کرتے تھے، مگر انسان زمین کے پیٹ سے پیدا ہوا کرتے تھے، اور اس وقت انسان کے پاس اپنی نسل آگے بڑھانے کی صلاحیت نہیں تھی. یعنی وہ بس زمین کے پیٹ سے پیدا ہوتے تھے، مر جاتے ہوں گے، انہیں درست کیا جا رہا ہوگا، وہ درستگی اپنے اوپر سبجیکٹ فیل کر کے کہ جی مجھے درست کیا جا رہا ہے، وہ مر جاتے تھے، ریپروڈیوس کر نہیں سکتے تھے. جب وہ مکمل طور پر درست ہو گئے تو پھر اس کو ریپروڈکشن کی صلاحیت دی گئی. یہ غامدی صاحب فرما رہے ہیں. پہلے تو پرائمریلی جو غامدی صاحب کے فالوورز ہیں وہ میرے اس وقت پرائمری ایڈریسیز ہیں، ٹھیک ہے. دوسری قرآن کو بھی ہم ابھی دیکھ لیتے ہیں کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے ان جنرل. لیکن غامدی صاحب جو بات کر رہے ہیں اس پر بھی غور کریں. جو غامدی صاحب کے فالوورز ہیں، میں تیسری دفعہ ریپیٹ کر رہا ہوں کہ میرے خیال سے ریپیٹیشن جو ہے وہ آپ کو یہ چیز پھر بھولنے نہیں دے گی. غامدی صاحب نے 2 کلیمز کیے یہاں پر. غامدی صاحب نے پہلا کلیم یہ کیا ہے کہ انسان ایک وقت تھا جب انسان اپنے قالب میں موجود تھا، مگر اس کے پاس ریپروڈکشن کی کیپیبلٹی نہیں تھی. اس وقت انسان ڈائریکٹلی زمین کے پیٹ سے برآمد ہوا کرتے تھے، نمودار ہوتے تھے، ٹھیک ہے. یہ بہت لمبا عرصہ تھا، لمبا ہی عرصہ تھا بقول غامدی صاحب کے، اور اتنی سخت غلطیوں سے بھرا ہوا انسان کا یہ ٹیمپلیٹ تھا کہ لمبا ہی عرصہ لگا اللہ تعالیٰ کو اس کو درست کرنے میں. جب وہ اپنی تھوڑی چھینی سے ٹھیک کرتے رہا انسان کو، ایک لمبے عرصے تک اسے لگا یار اب ٹھیک ہو گیا ہے، اب تو یہ ٹھیک ہو گیا ہے، چلو اب اسے ریپروڈکشن کی صلاحیت دے دیتے ہیں. ٹھیک ہے جی، یہ غامدی صاحب جو ہے بات کر رہے ہیں. اور ظاہری بات ہے کہ اگر بہت ہی لمبا عرصہ لگا تو پھر لمبی ہی غلطیوں کی ایک لمبی فہرست تھی. یہ ایک بہت لمبی چارج شیٹ کر دی ہے غامدی صاحب نے اللہ تعالیٰ کے اوپر، ٹھیک ہے، کیونکہ انہوں نے کہا بھی ایک لمبی فہرست تھی غلطیوں کی جن کو درست کرنے کے لیے ایک لمبا عرصہ لگا. ٹھیک ہے، تو ایک تو اس بات کو ذہن نشین کر لیں. اب ایسا ہے کہ جن آیات کی طرف غامدی صاحب اشارہ کر رہے ہیں یہ پہلے بھی ہم کور کر چکے ہیں، بڑی پاپولر آیات ہیں یہ.
सूरह सजदा की, तो 32 की 7, 8, 9 है, 32 की 7, 8, 9 खोल लें, उनको भी हम गो थ्रू कर लेते हैं। जी खोलें। अच्छा जी, आयत नंबर 7, जिसमें गामदी साहब दूसरी वीडियोस में, अपने दूसरे बयानात में इन आयात की तरफ तवज्जो दिलाते हुए काफी तहक्कुमाना अंदाज में और चैलेंजिंग अंदाज में, कि जैसे कि बहुत ही सेल्फ एविडेंट बात है, और उसी में अगर तो वही ना, अगर तो उनका मकसद लतीफा गोई है, तो आप अपने मकसद में गामदी साहब कामयाब रहे हैं, क्योंकि वाकई बहुत ही मुज़ाहिका खेज आपका अंदाज है और ऑडियंस इससे महजूज होगी और आपको दाद देगी। तो इसमें अगर ये सेंस ऑफ ह्यूमर है आपका इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ये तो बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन हमें ये लगता है बहैसियत तालिब इल्म कि ये शायद आपका सिंसियर जो है नजरिया है, और जब याद रहे कि सिंसियर नजरिया का मतलब यह है कि एवोल्यूशनरी बायोलॉजी की डिटेल से, बेसिक से और एडवांस तो दूर की बात, उससे जाहिरी बात है आपकी लाइफ जो है वो टपक रही है इससे। लेकिन ये कोई मैं आपके ऊपर हद नहीं बांध रहा, भाई हर फील्ड का इंसान को नहीं पता होता। इंसान कलेक्टिव एंटरप्राइज से ही आगे बढ़ता है, डिवीजन ऑफ लेबर से ही आगे बढ़ता है। किसी एक टीम में किसी की कोई स्पेशलिटी होती है, किसी की कोई स्पेशलिटी होती है, एंड इट इज एब्सोल्युटली फाइन। ये बिल्कुल साइब और मुनासिब बात है। तो फिर किसी एक आदमी को हरफन मौला समझ लेना, ये बात तो वैसे ही समझ में नहीं आती। खैर, तो पॉइंट यही है कि अब 32 की 7 को देखें क्या बात हो रही है। अच्छा, एक और मैं बात बताता जाऊं कि गामदी साहब ना सिर्फ ये कि चैलेंजिंग अंदाज में दूसरी वीडियोस में ये बताते हैं, फिर कहते हैं कि फॉसिल एविडेंस ने, फॉसिल्स ने डार्विन के नजरिए को कब का गलत साबित कर दिया हुआ है। ठीक है, इसी वजह से मैं आपसे ये इस्तदा कर रहा हूं कि अपने साथ किसी बायोलॉजिस्ट को बिठाएं और बुलेटेड लिस्ट, एक फहरिस्त बताएं, इसका मतलब क्या है, आप क्या कहना चाह रहे हैं, कि किस एविडेंस ने एवोल्यूशन को गलत साबित कर दिया है। क्या आप उस जमाने की बात कर रहे हैं कि जब कैम्ब्रियन एक्सप्लोजन के बारे में बात होती थी कि अच्छा अचानक आपको लगता है कि एवोल्यूशनरी स्केल के ऊपर अचानक कैसे इतने नए फॉसिल्स जो हैं बरामद हुए, उनके कुछ इंटरमीडिएट्स मौजूद नहीं या उनके प्रीकर्सर्स उनसे पहले के मौजूद नहीं, तो ये सडन है। तो फिर हम आपको बताएंगे कि मॉडर्न एवोल्यूशनरी बायोलॉजी को क्या एविडेंस मिला है कि वो कैसे एक्सप्लेन करती है। एक तो कुछ इंटरमीडिएट्स भी मिले हैं उसके बाद, और कैम्ब्रियन एक्सप्लोजन से पुराने भी आपके पास जेनेटिक्स के आपके पास इंफॉर्मेशन मौजूद है जिससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये पुराना है। दूसरी बात यह है कि आपके पास मॉडर्न मोलेकुलर बायोलॉजी की जो अंडरस्टैंडिंग है, जाहिरी बात है गामदी साहब, मैं आपको ये एड्रेस नहीं कर रहा, मैं सिर्फ ऑडियंस के लिए बात कर रहा हूँ। इसी वजह से मैं कह रहा हूँ कि अगर आप अपने साथ किसी बायोलॉजिस्ट को बिठाएंगे ना, वो ये बातें करेगा ना, उसका हम जवाब देंगे, हमारी ऑडियंस को भी बात की समझ आएगी। वरना ऑडियंस हमारी ये इतराज कर सकती है कि भी गामदी साहब का मोलेकुलर बायोलॉजी से क्या लेना देना, आप क्यों मोलेकुलर बायोलॉजी को बीच में लेकर आ रहे हैं गामदी साहब से बात करते हुए। अगर ऑडियंस हम पर ये इतराज रखेगी तो वो हक बजानिब होगी। लेकिन फिर भी हम ये आपको बता रहे हैं कि मॉडर्न मोलेकुलर बायोलॉजी की अंडरस्टैंडिंग से आपको ये बात वाज़ेह हो चुकी है कि जो रेगुलेशन के हिस्सा है जीनोमिक्स का, जो रेगुलेटरी पार्ट है, जो कि आपकी प्रोटीन सिंथेसिस में और प्रोटीन कोडिंग में हिस्सा नहीं लेता, वो जो है वो आपके जीन की एक्सप्रेशन को कंट्रोल करता है। यानी किसी जीन के होने का ये मतलब नहीं है कि वो एक्सप्रेस भी अपने आप को करेगी। इसीलिए एवोल्यूशन में बहुत छोटी तब्दीलियों से जो रेगुलेशन पार्ट में आती हैं, बड़ी रैपिडली तब्दीलियां, मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चरल चेंजेस आती हैं बड़ी तेजी से। तो इस वजह से है तो ये स्मॉल चेंजेस इन डीएनए, लेकिन स्मॉल चेंजेस इन डीएनए एट सर्टेन प्लेसेस कैन लीड टू लार्ज चेंजेस इन द एक्सप्रेस्ड इवेंचुअल फिनोटाइप। ये बात है। अब हम इन आयात को गो थ्रू करते हैं। खैर जी, पहली आयत है अल्लज़ी अहसना कुल्ल शैइन खल्क़हू। ठीक है जी। अच्छा, इसका क्या मतलब है? ये कि जी खुदा वो है, अल्लाह की तरफ इशारा हो रहा है, जिसने हर चीज बहुत अच्छी बनाई है। अहसन का मतलब बहुत अच्छी होती है। बहरहाल उन्होंने उसको ऐसे ट्रांसलेट किया है कि हु हैज परफेक्टेड एवरीथिंग ही क्रिएटेड। अच्छा, अगर उसने मराहिल में परफेक्ट किया है स्टेप बाय स्टेप, ये अपने अंदर फिर कुरान अपने ऊपर ही
ایک حد لگا رہا ہے کہ اس سے پہلی دفعہ میں تو پرفیکٹ نہیں بنا. ٹھیک ہے جی, جس نے نہایت خوب بنائی جو چیز بھی بنائی, ٹھیک ہے, کہ الذی احسن کل شیء خلقہ, کہ تمام چیزیں اس نے جو بنائی وہ بہت خوب بنائی. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد وہ بدأ خلق الانسان من طین, ابھی یہ آیت چل رہی, وہ بدأ خلق الانسان من طین, اور اس نے آغاز اس کا, انسان کی تخلیق کا آغاز جو ہے وہ کہتے ہیں جی گارے سے کیا. ٹھیک ہے, وہ بدا, اور بناوٹ انسان کی اور انسان کی بناوٹ مٹی سے شروع کی. ٹھیک ہے جی. اب آپ یہ دیکھیے کہ یہ آپ کو واضح لگ رہا ہے کہ یہ کوئی پوٹر جو یا کمہار جو ہے جو مٹی سے پتلے بنا رہا ہے یا آبجیکٹس بنا رہا ہے, سمپلسٹ ایکسپلینیشن اس کی یہی ہے. ٹھیک ہے جی. اگر اس کو آپ کوشش کریں گے کہ اوریجن آف لائف کی جو ہائیڈرو تھرمل وینٹس کے ساتھ کنیکٹ کرنے کی کوشش کریں گے, کیونکہ ہم واقف ہیں ان لوگوں سے بھی جو کہ اس کو کہتے ہیں کہ یہ جو ہائیڈرو تھرمل وینٹس میں جو لائف اوریجنیٹ ہوتی ہے اس کی طرف اشارہ ہے, گارے کی طرف, حالانکہ وہ بھی گارا نہیں ہے. ٹھیک ہے, خیر, لیکن سمپلسٹ ایکسپلینیشن اس کی, انسان کی بناوٹ مٹی سے شروع کی, اس کی سمپلسٹ ایکسپلینیشن یہ ہے کہ پتلا مٹی سے بنایا, وہی چیز انسان جو ہے امیجن کر پایا اس وقت کہ شروع کہاں سے ہوئی. ان اینی کیس جو اگر ہائیڈرو تھرمل وینٹ کی طرف آپ بات کرتے ہیں, انسان ہائیڈرو تھرمل وینٹ سے نہیں آیا. ٹھیک ہے, اس بات کو بھی یاد رکھنا ہے, وہ اوریجن آف لائف کی کہانی مختلف ہے. ٹھیک ہے, انسان بہت لیٹر ارائیول ہے. آپ کے بقول, آپ کے بیان کے مطابق غامدی صاحب, تمام لائف فارمز کو, تمام جانداروں کو علیحدہ علیحدہ ایک وقت میں کریٹ کر دیا گیا. ساری جاندار ایک بہت لمبے عرصے تک آپ کے بقول زمین کے پیٹ سے نمودار ہوتے رہے, اس کے بعد انہیں ریپروڈکشن کی صلاحیت دی گئی. ٹھیک ہے جی. اچھا جی, آگے چلیں, 32:8 پہ آئیں. یہ زمین کا کے پیٹ کہاں سے انہوں نے نہیں, تین میں وہ سے لے نہیں لیا؟ ہے, اچھا, وہ ڈائریکٹلی نہیں ہے. ہم قرآن کی انٹرپریٹیشن کے ساتھ بھی سنسیئر رہنا چاہیں گے. غامدی صاحب کی اپنی بناوٹ جو ہے نا, وہ کہہ رہے ہیں نا, وہ جو بدا خلقہ کی بات ہو رہی ہے کہ اس کی بناوٹ شروع کہاں سے کی. غامدی صاحب نے اپنے بیان کی بناوٹ جو ہے وہ غلط بیانی سے شروع کی. ٹھیک ہے, اس میں غلط بیانی کی مٹی ڈالی ہے. ٹھیک ہے. اچھا, تو وہ ہم رہیں گے, ہم آنےسٹ رہیں گے کہ قرآن میں یہ بات اس طریقے سے نہیں لکھی ہوئی. تو قرآن کا جتنا کریٹیسزم ہے وہ میں ابھی کروں گا, لیکن غامدی صاحب کی انٹرپریٹیشن کا بھی کریٹیسزم ہو رہا ہے انڈیپینڈنٹ آف واٹ از ریٹن ان قرآن. اور اگر ہم پر کوئی یہ کہے کہ نہیں غامدی صاحب نے غلط سمجھا سوچا ہے, ہم قرآن کی بھی جو بات اسی وجہ سے آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے. ٹھیک ہے جی. اچھا, اس کے بعد یہ کہہ رہے ہیں ثم جعل نسلہ من سلالۃ من ماء مہین. اس کے بعد دیکھیں, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی انسان کو پہلے مٹی سے بنایا, اس کے بعد اس کی نسل جو ہے ثم جعل نسلہ من سلالۃ من ماء مہین, اس کے بعد اس کی نسل جو ہے آگے جو چلانے کا سلسلہ ہے وہ کس سے, ماء مہین سے, کہ بڑے ہی ایک چھوٹے سے معمولی مہین سے پانی سے, ہمبل فلوئڈ جس کو وہ کہہ رہے ہیں, جس کو دوسرے تراجم میں, دوسرے ترجمے میں حقیر پانی بھی کہا جا رہا ہے. مہین کا مطلب چھوٹا بھی ہو سکتا ہے, بریف بھی ہو سکتا ہے. اس کا مطلب اگر یہ شاعری ہے تو شاعری میں اس کا مطلب سٹل اور لطیف بھی ہو سکتا ہے, ناٹ نیسیسریلی کہ ڈیگریڈ کرنے کی بات ہے کہ جی ماء مہین کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بڑے لطیف پانی سے, یہ بھی ہو سکتا ہے. لیکن بہرحال ہم اسے حقیر کہہ دیتے ہیں کیونکہ ترجموں میں لکھا ہوا, ہم تھوڑا ترجمہ کر رہے ہیں, اور ہمبل ادھر تو لکھا ہوا ہے کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں پھر اس کی نسل ایک بے وقت پانی کے نچوڑ سے چلائی. دیکھیے یہاں پر بے وقت اسے کہا جا رہا ہے کہ, لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ مہین کا ضروری مطلب نہیں کہ ہمیشہ بے وقت ہو, چھوٹا ضرور مطلب ہوتا ہے اس کا, لیکن مہین کا ایک مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بہت لطیف اینڈ سٹل. خیر جی, وہ کہتے ہیں کہ پھر اس کی نسل جو ہے وہ ہم نے ایک بے وقت پانی کے نچوڑ سے چلائی. آگے چلیں, 32 آگے چلیے جی. ہاں جی. بہرحال یہاں پر بھی بہت انٹرسٹنگ ڈائلاگ میں انگیج کر رہا ہے قرآن. وہ کہہ رہے ثم سواہ ونفخ فیہ من روحی. سواہ کا جو
इंटरप्रिटेशन गामदी साहब जो है वो कर रहे हैं कि उसको दुरुस्त किया। अच्छा, अब यहाँ पर गामदी साहब ठीक है, ठीक है, यहाँ पर कुरान वाकई ये कह रहा है, कुरान ये कह रहा है कि अगर आप सव्वा का मतलब देखेंगे तो उसमें आपको लगेगा कि जी किसी चीज को आफ्टर द इफेक्ट रिफाइन करना, उसको एजेस को स्ट्रेटन करना, एक दफा आपने कोई चीज काटी है तो फिर उसको कोने उसके जो है उनको स्ट्रेटन करना या स्मूथ करना किसी चीज को, तो उस लिहाज से सव्वाहु का मतलब यही है कि उसको ठीक किया जाए। ये इंग्लिश की ट्रांसलेशन में बात नहीं नजर आ रही है जो सामने नजर आ रहा है, लेकिन उर्दू की ट्रांसलेशन में देखिए यहाँ पर इसमें जिसे ठीक ठाक करके उसमें अपनी रूह फूंकी, यानी इसका मतलब है कि वो दुरुस्त करने वाला जो मामला है वो दुरुस्त है, वो इंटरप्रिटेशन गामदी साहब की दुरुस्त है। हाँ, इसमें ये नहीं लिखा हुआ कि बहुत लंबे अरसे वाला मामला यहां नहीं लिखा हुआ, वो गामदी साहब की अपनी इख्तरा है। वो क्यों, वो इख्तरा क्यों हुई है? क्योंकि उन्हें ये पता लग रहा है कि जी जो निएंडरथॉल्स और जो आपके डेनिसोवंस और दूसरे वो तो बहुत पहले एग्जिस्ट करते थे, वो तो बहुत पहले एग्जिस्ट करते थे। मॉडर्न होमोसेपियंस जो है उन्होंने उनके साथ जाहिरी बात है कि को एग्जिस्ट किया, इख्तलात की भी हमें मिलती है, यानी जीन फ्लो भी हुआ, लेकिन पीछे से जो होमो इरेक्टस की लड़ी चढ़ी आ रही है, अब कुछ नया डेटा भी आया है, हमने उस पर चेक किया था कि जाहिर बात है कि उस पर हम कॉशियसली अपनी इंटरप्रिटेशन हमने दी थी। तो वो गामदी साहब का वो जो लंबा अरसा है ना, वो आ रहा है कि उस इंफॉर्मेशन से जो दाएं बाएं से गामदी साहब के समातों और बसारतों को हिट कर रही है इर्द गिर्द से, ठीक है। आगे समा वल अबसार का भी जिक्र आ रहा है, मैंने इस वजह से ये इस्तेमाल किया। कहते जी सुम्मा सव्वाहु, उसको फिर दुरुस्त किया ठीक ठाक करके, वनफ़ख़ फ़ीही मिन रूही, उसमें अपनी रूह जो है वो फूक दी। नफ़ख़ा का फिर मतलब फूकना है, ठीक है। वनफ़ख़ फ़ीही मिन रूही ही, मिन रूही ही, यानी उसकी रूह, उसमें अल्लाह की रूह जो है ना वो उसमें की गई। अब आगे देखिए बहुत इंटरेस्टिंग बात हो रही है। उसके बाद मसला तो ये है कि जो एविडेंस के तौर पर कोई बात करने की कोशिश करते हैं उसमें फिर कुरान कोई ऐसी गलती कर देता है कि वो पकड़ा जाता है। गामदी साहब यहाँ रुक जाते हैं, ठीक है, क्योंकि उन्हें लगता है यहाँ सब्जेक्ट जो है ना खत्म हो गया है। वो आगे तो क्लोजिंग लाइन तो पढ़े इस लाइन की, आगे क्या लिखा हुआ? आगे लिखा हुआ वजअल लकुमुस्समा वल अबसार वल अफइदा कलीलन मा तशकुरून। अच्छा, अब देखें अफइदा की क्या ट्रांसलेशन कर छोड़ी इन्होंने। इधर कह दिया है फीलिंग्स, ठीक है, नीचे लिख दिया है इंटेलेक्ट। समा का मतलब हियरिंग, अबसारा का मतलब साइट, अवल अफइदा इंटेलेक्ट कह दिया है इस तर्जुमे में। इतनी बड़ी बदयानती की है इस इंग्लिश ट्रांसलेशन में। उर्दू में वो ट्रांसलेशन पकड़ी जाती है, ठीक है। मैं आपको इसका और भी एविडेंस बताऊंगा। अफिदा दिल को ही कहते हैं अरबी में, अफिदा दिल को कहते हैं। उसने तुम्हारी कान, आंखें और दिल बनाए, ठीक है। अब वो फिर लग रहा है कि जी दिल को सेंटर बताया जा रहा है। कलीलम मा तशकुरून, और तुम बहुत ही थोड़ा शुक्र करते हो, अदा करते हो, एहसान मानते हो। हमने तुम्हें देखो आंखें दी, कान दिए और दिल दिया, ठीक है। अब आपको याद होगा तकरीबन 2 साल पहले एक मौलाना आए थे गालिब के चैनल पर, और उन्होंने कहा था कि जी फुआद जो है वो अरबी में दिमाग को कहते हैं, तो दिमाग और उसका अफइदा जो है ना ये दिमाग की ट्रांसलेशन है। अच्छा यार, आप इतनी ज्यादा वो डिसऑनेस्टी कर रहे हैं, और आपका ये जो इंग्लिश और उर्दू के अंदर जो तर्जुमे में जो डिफरेंस है ना वो यहीं से पकड़ा गया। अब इन्होंने उर्दू में भी बदल देना है। हम हर दफा कुछ ना कुछ पकड़ते हैं, हाजी भाई आप नोट करते हैं हर दफा। अब आप देखें कि उन्होंने अंग्रेजी में अफिदा को इंटेलेक्ट कह दिया है और उर्दू में अभी दिल ही बैठा हुआ। मैं आपको इसका एक और एविडेंस देता हूं। आप ऐसा करें, बड़ी मशहूर सूरत है, लोगों ने याद भी की होगी बचपन में, वैलुल लिकुल्ली हुमज़ा। जो ये वाली सूरत आप निकालें 30वें पारे की, जो सूरा हुमज़ा है ना, वो सूरत नंबर है, वो सूरत नंबर 104।
104 की निकालें आयत नंबर 6। हम तो इस चीज में यकीन रखते हैं कि कुरान की सबसे अच्छी तशरीह जो है वो कुरान की रोशनी में ही है। बड़ी मशहूर सूरत है सूरह हुमज़ा, वैलुल लिकुल्लि हुमज़ा। तो नंबर 6 उसकी आयत है, नारुल्लाहि मुक़दतुल लती तत्तली वलल अफ़िदा। अगली है वो, यानी नारुल्लाहि मुक़दा की वो बता रहे हैं कि जी पीछे ये बहुत ज्यादा डराने वाली सूरत है कि जी तबाही है उन लोगों के लिए, और वो अल्लाह की जो फायर है नारुल्लाहि मुक़दा। पीछे बात हो रही है कि वो क्या चीज है जो कि उनको खा जाएगी। वो कहते हैं ना, वो अल्लाह की आग है, नारुल्लाहि मुक़दा। आगे अच्छा जी, नारुल्लाहि मुक़दतुल लती तत्तलिउ अलल अफ़इदा व्हिच रेजेस ओवर द हार्ट। The heart. अब ठीक है जी, अब आपके सामने ये एविडेंस मौजूद है कि अफ़इदा का मतलब हार्ट ही होता है कुरान की दूसरी जगह पर। ये रिकॉर्ड के लिए हमारे पास है। अल्टीमेटली विद द पैसेज ऑफ टाइम ये तमाम चीजें ये करते रहेंगे आहिस्ता आहिस्ता। सव्वाहु यानी आहिस्ता आहिस्ता दुरुस्त करते रहेंगे, इसका तस्विया करते रहेंगे, आहिस्ता आहिस्ता हार्ट की जगह दिमाग करते रहेंगे। जो कामती साहब सव्वाहु के इस्तेमाल को तस्विया का लफ्ज अपने दूसरे बयानात में इस्तेमाल करते हैं, तो ये कुरान की ट्रांसलेशन का तस्विया हो रहा है, उसको सव्वाहु के एक लंबे अरसे से गुजारना चाह रहे हैं लोग। तो अभी ये सिर्फ रिकॉर्ड के लिए ऐसा हो गया, ये भी बदल जाए कल को, हमें क्या पता। लेकिन आप ये देखें कि वो अल्लाह की वो जो आग है, नारुल्लाहि मुक़दतुल लती तत्तलिउ अलल अफ़इदा, ठीक है जी, यानी वो तुलू हो जाएगी उनके दिलों तक। तत्तलिउ, आप इसमें देखें कि इसमें तुलू होने का ओरिजिन है। जो उर्दू जानते हैं उनको नजर आ रहा है कि इसका रूट जो है वो तुलू होना है। तो तत्तलिउ अलल अफ़इदा, जिस तरह सूरज तुलू होता है, जो दिलों पर चढ़ती चली चढ़ता है ना, हम ये भी कहते हैं ना चढ़ता सूरज, वो तुलू के लिए हम चढ़ने का लफ्ज भी इस्तेमाल करते हैं। तो आप ये देखें कि कहा उनके दिलों पर अलल अफ़इदा आग जो है वो तुलू हो जाएगी। अब बताएं कि ये अफ़इदा का मतलब कुरान में मैं ये समझूं कि ये मुझे आपको टेम्पोरल लोब्स दिमाग का बता रहा है। ये कुछ लोग फुआद कहते हैं कि जी आपके टेम्पोरल लोब्स को फुआद कहते हैं, से वो निकालेंगे को अरबी के अंदर कोई उसकी इंटरप्रिटेशन, जहां कहीं फुआद या अफ़इदा किसी ने इस्तेमाल किया हो टेम्पोरल लोब्स के लिए या फ्रंटल लोब्स के लिए। मगर आप कुरान की रोशनी में बाकी जगहों पर देखें अफ़इदा किस तरीके से इस्तेमाल हुआ है, ठीक है जी। और फिर जो है अपने अफ़इदा से नहीं पूछें, अपने दिमाग से पूछें, दिमाग की ऑनेस्टी से पूछें, सच्चे दिमाग से, सच्चे जहन से सोचें, सच्चे दिल से नहीं। सच्चे दिल का कोई मतलब नहीं होता, सच्चे दिमाग से, सच्चे जहन से सोचें कि क्या हकीकत क्या है। कमिंग बैक टू गामदी साहब कि वो उनका ये कहना है कि स्टेजेस से गुजरे हैं जानदार, मराहिल से गुजरे हैं जानदार। अचानक ऐसा नहीं हुआ कि यकदम जो है इंसान अपनी फाइनल शेप में आ गया हो। इसलिए वो ये कहते हैं कि जो आपको फॉसिल्स मिलते हैं दूसरे जानदारों के, वो कोई उससे कुरान का मुकदमा स्ट्रेंथन होता है, क्योंकि कुरान आपको बता रहा है कि इंसान को बहुत अरसे तक दुरुस्त किया गया, सव्वाहु किया गया, बहुत लंबा अरसा वो खुद बीच में डाल रहे हैं। लेकिन बहरहाल कुरान में ये तो लिखा है कि ठीक ठाक किया गया, सफ़ा, इसका मतलब है पहले गलत हुआ, तो वो जो गलतियां हुई हैं वो आपको मिल रही हैं उनके फॉसिल। अभी ये तो कह रहे हैं कि जी बस गलतियों को दुरुस्त किया गया, दुरुस्त किया गया। और अब वो कहते हैं कि अब देखें कि जो वो चैलेंजिंग अंदाज में गामदी साहब जो क्लोज करते हैं दूसरी वीडियोस में अपने आर्ग्यूमेंट को, वो ये कहते हैं कि अब देखिए तो डार्विन का नजरिया ज्यादा सही है, साइंस की फाइंडिंग्स के साथ कुरान के बयान को मिलाकर देख लीजिए। बड़े चैलेंजिंग अंदाज में आम ऑडियंस समझती है यार इतने धड़ल्ले से कोई चैलेंज कर रहा है तो शायद इसके पीछे कोई सब्सटेंस हो। भाई नहीं, एक तो पहली बात यह है कि एवोल्यूशनरी बायोलॉजी साइंस आपको ये नहीं बताती कि कोई प्रोग्रेसिवली भी, अव्वल तो प्रोग्रेसिवली किसी चीज को लिनियर अंदाज में दुरुस्त करना भी फंडामेंटली खुदा के कॉन्सेप्ट को चैलेंज करता है। और कुरान से ये गलती हो गई है गामदी साहब, उसको तो ठीक ही इंटरप्रेट कर रहे हैं, क्योंकि कुरान कह रहा है कि ठीक ठाक करना पड़ा। तो ये अपने अंदर बात समझ में आ जाती है कि चूंकि ये खुदा का कॉन्सेप्ट कैसे, आपको एक दफा फिर ये एविडेंस है कि इंसान का गढ़ा हुआ है, क्योंकि
इंसान ये समझ रहा है कि इंसान जब कोई चीजें बनाता है तो उसको स्टेप बाय स्टेप तरीके से उसको इम्प्रूव करना पड़ता है, गुनिये में लाना पड़ता है। गुनिये में लाने का मतलब ये है कि उसके एजेस वगैरह को सीधा करना पड़ता है, स्ट्रेटन आउट करना पड़ता है। जैसे कुम्हार एक बर्तन बना रहा है, उसको वो स्मूथ आउट करेगा बाद में, ये समझ रहे हैं? जी जी, या स्मूथ आउट करेगा। वो गुनिया आमतौर पर जो लोग उसको पंजाबी या उर्दू को समझते हैं, जो वो राइट एंगल होता है, राइट एंगल टूल, एल शेप्ड, उसको गुनिया बोलते हैं उर्दू में। वो जो राइट एंगल है, अगर आपने कोई रेक्टेंगल काटा है, ये सारे ही, अगर कोई लकड़ का वुड वर्कर है, कारपेंटर है, वो भी इस्तेमाल करता है। आप कोई चीज भी बना रहे हैं, अगर वो आप उसके कॉर्नर को राइट एंगल रखना चाहते हैं परफेक्ट, तो आप उससे चेक करते हैं। तो आप पहले रफली काट लेते हैं, फिर उससे चेक करके आहिस्ता आहिस्ता उसके एजेस ऐसे करते हैं कि वो राइट एंगल हो जाए, ठीक है। फिर आपका एक तो वो बबल वाला जो लेवल चेकर होता है, जो जिससे लेवल चेक करते हैं, अगर आपने कोई सरफेस बनानी है तो उसको, अगर आपने वो बबल सेंटर में होना चाहिए, अगर आप उस बिल्कुल जमीन के पैरेलल करना चाहते हैं तो उसको भी पहली ट्राई में बना के फिर आहिस्ता आहिस्ता जो आपका कोई राज मजदूर है वो सीधा करता है, ठीक है जी। तो वो दरअसल सवाहू का मतलब वही है, और वो इस चीज को मान रहे हैं। ये इस चीज का एविडेंस नहीं है कि ये साइंस के मुताबिक हो गई है बात, ये इस चीज का एविडेंस है कि इंसान का बनाया हुआ, तराशा हुआ खुदा का कॉन्सेप्ट है, उसमें इंसानी क्वालिटीज का अक्स है। और दरअसल ये खून के कतरे हैं, एविडेंस है उन चीजों का कि जो कि खुद कुरान के अंदर रेमिनेंट्स बता रही हैं कि खुदा का कॉन्सेप्ट इंसान का तराशा हुआ है। ये इस चीज का एविडेंस है, ठीक है जी। तो ये आयात जो बताई जा रही हैं इस्लाम की हकानियत के लिए, दरअसल ये एंटी गॉड आयात है। ये खुदा के तसव्वुर को चैलेंज कर रही हैं। तो ये बेस्ट रेसिपी है किसी प्रैक्टिसिंग बिलीवर को एथियस्टिक सोच उसमें इम्प्लांट करने की, कि उसको सूरज सजदा की इन आयात की तरफ उसकी तवज्जो मबजूल करा दी जाए। तो बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वंस अगेन। मैं हमेशा थैंक यू करता हूँ जो जब आयात की तरफ, क्या कहते हैं, कोई लोग तवज्जो दिलाते हैं ऐसी आयात की तरफ। मगर कमिंग बैक, जो आपको, जो साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन आपको ये नहीं बता रही कि प्रोग्रेसिवली एक फॉर्म जो है वो दूसरे फॉर्म में, एडवांस फॉर्म में, इम्प्रूव्ड फॉर्म में इम्प्रूव होती गई, नहीं, ऐसा नहीं है। आपके पास इस चीज का एविडेंस मौजूद है कि दरअसल आप ज्यादा क्वांटिटी बनती है, जो असल में ट्रायल एंड एरर है वो ये है कि ज्यादा क्वांटिटी बनेगी, ज्यादा वेरिएंट्स बनेंगे, उनमें से जो सक्सेसफुल होगा वो जीतेगा, बाकी जिनकी फिटनेस नहीं होगी वो खत्म हो जाएंगे। इस तरीके से आपके सामने ये प्रोग्रेशन इमर्ज कर रही है। ऐसा नहीं कि पहले स्टेप में इवन अल्लाह मियां ने भी देखा यार इसमें ये गलती रह गई है, चलो इसको ठीक कर लेते हैं, ऐसा भी नहीं है। अव्वल तो यही खुदा के कॉन्सेप्ट को डिस्पोज ऑफ कर देता है, ऐसा भी नहीं है। वेरिएशंस जनरेट की हो रही हैं और फिर वो खुद ही जाया हो रही है, क्योंकि वो एक दूसरे के साथ आगे compete नहीं कर सकती। इस तरीके से फिल्टरिंग हो रही है, इस तरीके से आपको प्रोग्रेशन नजर आ रही है। तो ये कोई ऐसी प्रोग्रेशन नहीं है कि पहले मॉडल नंबर 1 आया, फिर मॉडल 2 आया, इंप्रूवमेंट उसमें देखा, नहीं, बहुत सारे मॉडल्स पैरेलल में आ रहे हैं, आपस में compete कर रहे हैं, और ज्यादातर चीजें एक्सटिंक्ट कर रही हैं। ये एक्सटिंक्शन और ओवर जनरेशन की स्टोरी है, एक्सटिंक्शन और ओवर जनरेशन की। आपके पास वेरिएशन मौजूद है और फिर उसके बाद वो खुद ही आपस में कंपटीशन से एलिमिनेट हो रही है। और ये बात सिर्फ उस वक्त नहीं है जब कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स इवॉल्व कर चुके हैं, उस वक्त भी है जब मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ रिसोर्सेज में compete कर रहे हैं। जो मॉलिक्यूल्स ज्यादा देर तक स्टेबल रह सकते हैं वो ज्यादा परसिस्ट करेंगे। तो वो जो मोलेकुलर एवोल्यूशन की हम अक्सर जिक्र करते हैं कि जी बाय वर्च्यू ऑफ देयर एबिलिटी टू परसिस्ट फॉर लॉन्गर टाइम, वो मॉलिक्यूल्स आपको ज्यादा नजर आएंगे। तो वो मोलेकुलर एवोल्यूशन में भी ये बात है। इन एनी केस पॉइंट यही है कि एवोल्यूशन आपको ट्रायल एंड एरर के बेस पर का एविडेंस देती है। ट्रायल एंड एरर का एविडेंस
आज की तारीख में भी हमारे अंदर मौजूद है। गामदी साहब के अंदर ट्रायल एंड एरर चल रहा है। आपकी, मैं अक्सर एग्जाम्पल देता हूं, जब कोई सेल रेप्लिकेट करता है तो गलतियां होती हैं, फिर उन्हें दुरुस्त करने की कोशिश की जाती है, फिर सब्बाहू की कहानी आती है, ठीक है। और जो आपके सामने लैब एक्सपेरिमेंट्स में ये बात वाज़ेह हो चुकी है कि जब आप प्रेडेशन प्रेशर बढ़ाते हैं या न्यूट्रिएंट्स का प्रेशर बढ़ाते हैं तो नई स्पीशीज इवॉल्व करती हैं। ऐसा ड्रोसोफिला के केस में हो चुका है ऑब्जर्व। ड्रोसोफिला कोई माइक्रोब नहीं है, वो कोई माइक्रो एवोल्यूशन की एग्जांपल नहीं है। ड्रोसोफिला जो है वो एक कॉम्प्लेक्स मल्टी सेल्यूलर जानवर है, उसकी स्पीशिएशन लैब में ऑब्जर्व हो चुकी है। दूसरे जानदारों में आपके पास, अगर आप ई कोलाई को ले लें, ई कोलाई चलें ठीक है, एक रिलेटिवली सिंपल ड्रोसोफिला के मुकाबले में है, उसमें भी आपके पास जो एविडेंस मौजूद है वो यही है कि आपके पास बेबहा वेरिएशन जनरेट होती है इन लैब। जब उसको आप देते हैं तो वो ऐसी म्यूटेशंस जनरेट होती हैं जो कि जिनमें से कुछ अच्छी हैं, जिनमें से कुछ बुरी हैं, जिनमें से कुछ न्यूट्रल है। ये भी पेपर हम डिस्कस कर चुके हैं। और जो आपकी डेलेटेरियस जो हार्मफुल म्यूटेशन है वो एलिमिनेट हो जाती हैं और बेनिफिशियल और न्यूट्रल परसिस्ट करती हैं। न्यूट्रल म्यूटेशंस बहरहाल एक बहुत बड़ा फ्यूल है एवोल्यूशन का, क्योंकि वो वेरिएशन को एक्सप्लोर करने का एक लो कॉस्ट तरीका नजर आता है कि वो हार्मफुल तो नहीं है, वो डायरेक्ट बेनिफिट भी नहीं दे रही, मगर उनका नुकसान नहीं है। इस वजह से वो पॉपुलेशन में रहेंगी, परसिस्ट करती रहेंगी। एज अ कॉन्सिक्वेंस लेटर ऑन जो ज्यादा म्यूटेशंस जो है वो ज्यादा, यानी कि जिनमें ज्यादा तब्दीली आ रही है, वो चीजें एक्सप्लोर हो सकती हैं। ये एक लंबा टॉपिक है। मैं ये इंप्रेशन नहीं देना चाहता कि सिर्फ पॉइंट म्यूटेशंस ही सोर्सेज ऑफ वेरिएशंस हैं, और बहुत सारी सोर्सेज ऑफ वेरिएशंस हैं जिनमें बड़े बड़े चंक्स जो हैं वो उनका रिकॉम्बिनेशन एक्सपेरिमेंट होता है, ऑल्टरनेटिव स्प्लाइसिंग होती है। हम सारी बातें कर चुके हैं पहले भी। खैर, कमिंग बैक, एवोल्यूशन लिनियर प्रोग्रेस का नाम भी नहीं है। एवोल्यूशन सिर्फ मराहिल से गुजरने का नाम भी नहीं है। एवोल्यूशन ट्रायल एंड एरर का नाम है। ट्रायल एंड एरर से भी मुराद ये है कि ओवर जनरेशन एंड फिल्टरिंग, ओवर जनरेशन एंड फिल्टरिंग, बुनियादी तौर पर ओवर जनरेशन एंड फिल्टरिंग की ज्यादा मिकदार बना के उसमें से फिल्टरिंग हो रही है। ये फुटप्रिंट है एक ऐसे सिस्टम का कि जिसके पास आने वाले वक्त की इंफॉर्मेशन नहीं है। इसी वजह फोरसाइट नहीं है। इससे बिल्कुल कोई मफर नहीं कि जो आपको मॉडर्न एविडेंस मिल रहा है उस पर अगर फुटप्रिंट किसी चीज का मौजूद है तो वो ऐसी चीज का मौजूद है जिसके पास आने वाले वक्त का फोरसाइट और इल्म नहीं है। ठीक है, ये आपको साइंस साबित कर रही है, क्योंकि ओवर जनरेशन एंड देन फिल्टरिंग, फिल्टरिंग का कॉन्सेप्ट ही तब इमर्ज करता है जब आप वो चीज नहीं बन पाई जिसकी जरूरत थी। ठीक है जी, मल्टीपल कैंडिडेट्स को आपस में लड़ाना वो बेसिकली लैक ऑफ फोरसाइट का टेल साइन है। तो यहाँ मेरे ख्याल सोच रहा था वो बना नहीं पा रहा था। दरअसल है कोई नहीं जो बनाने की कोशिश कर रहा है, कोई नहीं कोशिश कर रहा था, दूसरे लफ्जों में आप नहीं कह सकते, क्योंकि नेचुरली जिन वेरिएशंस में वो क्वालिटीज होंगी जो कि उनको दूसरी वेरिएशन या वैरायटी पर एडवांटेज देती हैं, वो परसिस्ट करेंगी, और दूसरी जो है वो बिल्कुल फना का शिकार हो जाएंगी। तो इसके लिए किसी की जरूरत नहीं है, नेचुरली ही ये होगा। और वेरिएशन क्यों मौजूद होगी? वेरिएशन भी पॉपुलेशन में इस वजह से मौजूद होगी क्योंकि कोई परफेक्ट सिस्टम नहीं है। बहुत मुश्किल काम है एग्जैक्ट क्लोनिंग करना किसी चीज की, यानी एग्जैक्ट कॉपी करना किसी चीज की, वो बहुत मुश्किल काम है। इसी वजह से जब आपके डीएनए की बेसिस कॉपी होती है, उनमें मैं कई दफा आपके लोगों की तवज्जो इस तरफ मबजूर कराता हूं कि उनमें जो कॉपीइंग एरर्स होते हैं वो बुनियादी तौर पर इस चीज का इंदिया देते हैं कि एरर्स की नेचर क्या है। जो एरर्स होते हैं वो जो
कॉपीइंग मैकेनिज्म जो मुश्किल है ना वहां एरर ज्यादा होते हैं, जो कॉपीइंग मैकेनिज्म आसान है वहां एरर कम होते हैं। यानी जहां आपके पास एक ऐसी बेस है जिसमें 2 रिंग्स हैं और वो 2 रिंग से 2 रिंग में ही म्यूटेट कर गई है, अब जो आपका एंजाइम जो इसको चेक कर रहा है उसके लिए समझें कि जो बेसिक टेम्पलेट है वो भी 2 रिंग का है और जिसको उसने टेस्ट करना है वो भी 2 रिंग का है, वहां उसको गलती लग जाती है और वो स्लिप थ्रू कर जाता है थ्रू दैट चेक गेट, सिक्योरिटी चेक। ठीक है, तो ये 2 रिंग से 2 रिंग की जो म्यूटेशन है वो बच जाती है एरर, 1 रिंग से 1 रिंग की म्यूटेशन वो भी बच जाती है, क्योंकि 2 मिलती जुलती चीजों के दरमियान डिफरेंशिएट करना है। जब 1 से 2 होती है और यहाँ 2 से 1 होती है, 2 रिंग से 1 रिंग की बेस की म्यूटेशन होती है या 1 रिंग से 2 रिंग की बेस की म्यूटेशन होती है, उस सूरत में चूंकि दोनों के दरमियान डिफरेंस ज्यादा है, पकड़ना आसान है, तो जो एरर की जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो आपको बता रही है, वो इंडिया दे रही है कि भाई मुश्किल काम है एग्जैक्ट कॉपी करना, इसलिए वेरिएशंस होंगी ही होंगी, और जब वेरिएशंस होंगी और वो आपकी फिटनेस के हिसाब से भी डिफरेंट एडवांटेज या डिफरेंट नुकसान या डिफरेंट तरीके से हार्मफुल या डिफरेंट तरीके से बेनिफिशियल होंगी, तो उनमें से जो बेनिफिशियल वाली हैं वो अपने ज्यादा डिसेंडेंट्स अगली जनरेशन में छोड़ेंगे विद द पैसेज ऑफ टाइम, जो ज्यादा डिसेंडेंट्स नहीं छोड़ेंगे वो एलिमिनेट हो जाएंगे। इस तरीके से पॉपुलेशन में चेंज जो है वो प्रोपेगेट करती रहेगी। ऐसा नहीं है गांधी साहब, मॉडर्न साइंस ये नहीं बता रही कि जी सिर्फ मराहिल से गुजरा है, एक मेगा कोलोसल मैग्नीट्यूड का, ठीक है, यानी जिसको कहते हैं बिब्लिकल या पुरानिक प्रोपोर्शंस का ट्रायल एंड एरर हो रहा है। ठीक है जी, बहुत अच्छा आपने बताया सब्सटेंशिया, और ये बार बार ये कहते हैं कि फॉसिल एविडेंस एवोल्यूशन, डार्विन्स एवोल्यूशन को गलत साबित कर रहा है और कुरान ज्यादा उससे एग्री करता है एवोल्यूशन से। ये बात जो गलत कहते रहते हैं वो कभी रेफरेंस नहीं दिया कि कौन से फॉसिल एविडेंस की बात कर रहे हैं, जब हमें फॉसिल एविडेंस से नजर आता है कि 99% ऑफ स्पीशीज एक्सटिंक्ट हो गए हैं। वो आपको एक कंपटीशन दिखा रहा है, परफेक्शन हर चीज नहीं बन रही। और अगर मैंने तो उस तरफ इशारा दे दिया कि अगर इनके फॉसिल एविडेंस से मुराद को कैम्ब्रियन एक्सप्लोजन की तरफ इशारा है कि जी सडनली फॉसिल रिकॉर्ड में अचानक इतनी ज्यादा फॉसिल्स की वेरिएशन क्यों आपको नजर आने लगती है, और एवोल्यूशन तो ग्रेजुअल प्रोसेस है, तो आपको फॉसिल्स में इतने जंप्स क्यों नजर आने लगते हैं मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर शेप के हिसाब से, उसकी एवोल्यूशन, दिस इज प्रिसाइजली यू एक्सपेक्ट जब रेगुलेटरी जीनोमिक्स वाली सिचुएशन इवॉल्व हो चुकी हुई है, उस सूरत में स्मॉल चेंजेस, आपके पास रन X2 की जीन है, आपके पास और कई बेसिक किस्म की जीन मौजूद हैं जो कि रेगुलेशन की जीन्स हैं, जिनमें थोड़ी तब्दीली से आपकी बेबहा तब्दीली आती है, और फिर डेवलपमेंटल इतनी जिसको इवो डिवो कहते हैं, एवोल्यूशनरी डेवलपमेंटल बायोलॉजी, जो जिससे जो कई आपकी जो फिश है उनके अंदर जीन्स का एक्सप्रेशन जो है वो चेंज करता है एज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ द डाइट दे टेक इन। अगर उनको बड़ी कोई सख्त डाइट लेनी पड़ती है तो उस प्रेशर से जीन्स का एक्सप्रेशन मॉड्यूलेट होता है जीन का ही एक्सप्रेशन मॉड्यूलेट है, उसकी वजह से उनका जॉ बड़ा हो जाता है। आपको लगेगा कि जी एक ऐसी एनवायरनमेंट में जो कि ऐसी फिश हैं जो वो छोटे जॉ वाली हैं, जहां उनको नरम गजा मैसर है और जिनको सख्त गजा मैसर है, अचानक वो बड़ी कैसे हो गई भाई? ये भी नेचुरल सिलेक्शन से कि उस जिनकी जो जॉ की शेप को, जो जीन्स का एक्सप्रेशन जो कंट्रोल कर रहा है अल्टीमेटली उस फिनोटाइप को, वो उनकी नेचर ऑफ डाइट से वो जीन का एक्सप्रेशन मॉड्यूलेट हो रहा है। ये चीज भी सिलेक्ट हुई है नेचुरल सिलेक्शन में, तो बड़ी जल्दी तब्दीली आएगी। तो ये जो एपिजेनेटिक्स और रेगुलेटरी जीनोमिक्स की अंडरस्टैंडिंग है, ये बहरहाल पिछले 20-22 बरस के अंदर ज्यादा अच्छे तरीके से लोगों के सामने आई है। टर्न ऑफ द सेंचुरी या 1990 की दिहाई के अंदर बहुत सारे क्रिटिसिज्म्स क्रिएशनिस्ट की तरफ से होते थे, वो बिल्कुल ऑब्सोलीट हो चुके हैं, वो आर्काइक हैं, क्यों? वो इस वजह से थे क्योंकि उनको मोलेक्युलर बायोलॉजी की समझ नहीं थी। आज की तारीख में आपको पता है कि तब्दीलियां फिनोटाइप में बड़ी तब्दीलियां लाने के लिए जीनोटाइप में छोटी तब्दीलियों से वो बड़ी तब्दीलियां आ सकती हैं, तो इस बात को याद रखें। तो आप फॉसिल एविडेंस
से मुराद क्या है कि फॉसिल एविडेंस नहीं है साहब। इसी वजह से मैं कह रहा हूँ कि अगर तो वो ये स्टैंडर्ड क्रिएशनिस्ट की बुलेट है आपके पास, बुलेटेड लिस्ट है कि भाई फॉसिल में कैम्ब्रियन एक्सप्लोजन के बाद सडनली एक एक्सप्लोजन ऑफ वेरिएशन है, उसकी एक्सप्लेनेशन मौजूद है, वेल अंडरस्टूड है, आप हम डिटेल में रेफरेंसेस के साथ पहले भी बता चुके हैं, लेकिन दोबारा से क्या करते हैं, हम इस सफर की तरफ जाएंगे। ये तो हमें बड़ा यानी कि हमारा टॉपिक ऑफ इंटरेस्ट है दोनों चैनल्स का, कैम्ब्रियन एक्सप्लोजन। अगर आप ये समझते हैं कि कहीं पर आपको लग रहा है कि जी ट्रांजिशनल फॉर्म्स होनी चाहिए थी, दरमियानी फॉसिल्स होने चाहिए थे, उनकी क्या एक्सप्लेनेशन, और कुछ ट्रांजिशनल फॉर्म्स जो मिली भी हैं इन एतराजात के उठने के बाद, उनका आप हम क्या कहते हैं रेफरेंसेस के साथ एविडेंस देंगे। अगर आप ये समझते हैं कि इनके पीछे कोई फॉसिल आपको नहीं मौजूद, प्री कैम्ब्रियन को फॉसिल मौजूद नहीं है, ये बात भी आज की तारीख में गलत साबित हो चुकी हुई है। स्ट्रोमेटोलाइट्स के फॉसिल, गर्चे सॉफ्ट टिश्यू की फॉसिलाइजेशन मुश्किल काम है, लेकिन स्ट्रोमेटोलाइट्स के फॉसिल बरामद हो चुके हुए हैं। तो ये वाला इतराज के प्री कैम्ब्रियन फॉसिल कोई आज तक नहीं मिला, वो कब का गलत साबित हो चुका हुआ। और दूसरी लाइफ फॉर्म्स के साथ जो जीनोमिक फाइलोजेनेटिक ट्री है वो भी एस्टेब्लिश कर रहा है कि पोस्ट कैम्ब्रियन एक्सप्लोजन जो लाइफ फॉर्म्स हैं वो उसी ट्री का हिस्सा है। तो इन सारे सवालों के जवाब मौजूद हैं, लेकिन अगर आपके पास कुछ और है, अगर आपकी पटारी पे कुछ और है, साथ एक बायोलॉजिस्ट को बिठाएं, एक आधे घंटे की वीडियो बनाएं या 7 वीडियो की सीरीज बनाएं, ठीक है, और हम उसका फिर क्या कहते हैं पॉइंट बाय पॉइंट एनालिसिस करेंगे मॉडर्न लिटरेचर की रोशनी में, और अपनी तालिबाना हैसियत में उन पॉइंट्स को एड्रेस करेंगे। लेकिन ये सिर्फ ऊंची आवाज में बात करके कि जी फॉसिल एविडेंस तो कब का डार्विन के नजरिए को और नेचुरल सिलेक्शन को और एवोल्यूशन बाय वेरिएशन एंड नेचुरल सिलेक्शन, इसको गलत साबित कर चुका है। तो ये बात आप बताएं कि कौन से फॉसिल एविडेंस की वजह से आपको ये लग रहा है।